many of you heard about this entrepreneurship in your life, and right now it's booming in India. Everyone is talk about entrepreneurship. So what exactly this entrepreneurship is all about? So so for me, entrepreneurship is not just about running a startup. Entrepreneurship is not also a degree that you go in some university, get a 4 years, spend 4 years, and after that you will get a certificate. Okay, now you are an entrepreneur. It's not like that, guys. Okay, so अगर entrepreneur आप देख रहे हो तो entrepreneur एक जर्नी, और ये एक जर्नी स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये अप डाउन जर्नी है। एक दिन आपको लगेगा आप यूनिकॉर्न बना सकते हो, एक दिन आपको लगेगा नो, थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, when things are not working, when you are not able, your teammates is not working because of you, because of your environment, because of the money issue, all those things are going on, and you feel like, okay, I'm not the perfect guy for pursuing entrepreneurship. So for me, entrepreneurship is not just about running a startup. You can also become an entrepreneur by joining some company as an employee also. Okay. So I give you one example. First of all, without starting, how you can become an entrepreneur. So we all heard about like Sundar Pichai. Sundar Pichai is the right now is the CEO of Google. Okay, he's always an entrepreneur from his childhood. Okay, he joined Google as an employee, but he's right now as a CEO of Google. So it shows that entrepreneur is not just about running a startup. One thing. Second thing, entrepreneurship. Second example, I would like to give you Satya Nadella. It's a CEO of Microsoft. That guy is also not started any startup. He joined Microsoft as an employee, and now he's the CEO. So what is the similarity in both of these guys? If you look at, and why I'm mentioning them, these two guys, because they all from India. वो दोनों इंडिया से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैं इन दो का मेंशन कर रहा हूँ। और मैं इसमें एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। जैसे आप सत्या नडेले की बात करने जाओगे, तो वो माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड का उन्होंने पूरा स्क्रैच से उसे हैंडल किया था, और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ को इम्प्रेस किया था अपनी स्किल से, अपनी लीडरशिप क्वालिटी से, एंड देन दे आर प्रमोटेड एज अ सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। सेम गोस टू, अगर आप गूगल में सुंदर पिचाई का देखने जाओगे, तो सुंदर पिचाई इज वन गाय हु सजेस्टेड गूगल अबाउट जीमेल, द जीमेल राइट नाउ वी आर यूजिंग, इट इज द आइडिया ऑफ सुंदर पिचाई। So that is the one way to pursue your entrepreneurship journey. The second way of pursuing your entrepreneurship journey or follow as an entrepreneur is running your own startup. And running your own startup, there are few problems you also face while running those startup. I'm going to talk about each and everything, how you can start your own startup from scratch. Second thing I'm going to talk about is that if you are not able to find out problem, how you go figure out that problem. And once you already, I believe that some of you guys who are listening to me, maybe some of you already running some startup and you facing some problem. I'm going to talk about those things also, how you can solve that particular problem too. Okay, so I would like to start divide this conversation into two parts. The first part, I'm going to assume like some of you are not even, you want to start an entrepreneurship journey, you want to start your own startup, but you don't know how to start, uh, take a first step. Okay. So I just want to start with one quote, which is given by one of the great entrepreneurs, that you don't have to be great to start, but you have to start to become a great. So that is the one thing you have to be clear from the beginning. आपको बड़ा होने की कोई जरूरत नहीं स्टार्ट होने के लिए, बट आप स्टार्ट करोगे तभी आप एक बड़े बन सकते हो अपने entrepreneurship जर्नी में. That is the first thing you have to be make sure from the beginning of your entrepreneurship journey. Second thing, if you literally want to find the best idea for your startup, the one thing you have to do is to open your mind, be focused, be sit with those people who always complain about those things. If your friend, if your colleagues, if your family members complaining about something, go do some research on that. Why this people is complaining about this problem? This problem is so much big that there will be some gap that I can fill up with my particular solution, or it's so small that it's not a problem. So you have to be clear and focused whenever someone is complaining, it whether it's your customer or whether it's your teammates. So go and figure out those things, and try to find out that problem first, filter it on your own level, and then decide whether you want to pursue your startup on that particular problem or not. Okay, that's one thing. So if you don't have idea, if you want to start your own startup, looking for to find those ideas, go for it right now. Go sit with those people or find out
the problem which is right now is booming in Indian market or global market. Try to find out what you can make a unique from your particular service or product in that particular market. That one thing. Second thing is that once you have idea and now how you can make it big. Okay. So for the okay, for this I want to give one more example. Okay, I would like to give an example here is the in 1900 when first time fridge invented. Okay, I am talking about 1900 जब पहली बार फ्रिज इन्वेंट हुआ था तो सब लोग बोलते थे हाँ, वो कंपनी बहुत बड़ी बन जाएगी जिस जो फ्रिज बनाएगी। एवरी फाउंडर्स उस टाइम में जितने भी फाउंडर्स थे ना एंटरप्रेन्योर हम्म। यूएस में वेस्टर्न मार्केट वो सब फाइट कर रहे थे फ्रिज बनाने पे कि जो सबसे बड़ी जो सबसे ज्यादा फ्रिज बनाएगा वो फ्रिज कंपनी बन जाएगा। वहां पे दो फाउंडर थे जिन्होंने डिसाइड किया नहीं मैं फ्रिज नहीं बनाऊंगा। द रीजन वो उन्होंने डिसाइड किया मैं फ्रिज इसलिए नहीं बनाऊंगा क्योंकि फ्रिज ऑलरेडी 100 लोग ऑलरेडी बना रहे थे तो मैं एक और फ्रिज बनाऊं तो मैं एक और जाके फ्रिज बनाऊं। सो दे डिसाइडेड टू यूज फ्रिज टू बिल्ड अनदर प्रोडक्ट। उन्होंने फ्रिज को यूज करके एक नया प्रोडक्ट बनाया है। हम उस कंपनी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो कंपनी का नाम है कोका कोला। सो कोका कोला ने उस टाइम डिसाइड किया कि नहीं मैं एक और फ्रिज कंपनी नहीं बनाऊंगा। मैं फ्रिज ऑलरेडी कई और एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप बना रहे हैं। मैं फ्रिज को यूज करूंगा और एक नया डिवाइस बनाऊंगा एक नया प्रोडक्ट बनाऊंगा जिसका नाम है कोका कोला। एक कोल्ड ड्रिंक जो फ्रिज को यूज करके आगे मार्केट हुई है और आज फ्रिज से भी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है कोका कोला। ये एक वन एग्जाम्पल है जहां पे आप देख सकते हो कि अपने आइडिया को अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग coming back to that particular point that is the problem point how you can find it solution। तो solution अब यहाँ पे भी आप जब आप स्टार्टअप में इंटर हो चुके हैं तो कई स्लाइड्स आते हैं आपके स्टार्टअप जर्नी में जैसे कि आपके प्रोडक्ट वो कितने अच्छे हैं फर्स्ट थिंग। क्या वो प्रोडक्ट प्रोडक्ट मार्केट फिट है या नहीं। प्रोडक्ट मार्केट फिट है या नहीं पहली चीज वो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो उस पर भी मैं आऊंगा। सेकेंड थिंग आपको एक टीम बनाना पड़ेगा अपने स्टार्टअप को रन करने की इनिशियल स्टेज। सो व्हेन आई एम सेइंग यू शुड गो फॉर समवन हु इज बेटर देन यू एंड बिल्ड अ टीम। सो आपको जाना है और कुछ ऐसे बंदे ढूंढने कुछ ऐसे लोग ढूंढने जो आपसे ज्यादा अच्छे स्किल जानते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब मैं बोल रहा हूँ टीम तो ये टीम का मतलब क्या हुआ। मतलब मैं 20 लोगों की बात कर रहा हूँ या मैं 100 लोगों की बात कर रहा हूँ क्या मैं बात करूँ। मैं जब टीम बोल रहा हूँ तो मैं केवल 3 से 4 लोगों की बात कर रहा हूँ मैक्सिमम इनिशियल स्टेज में व्हेन यू आर लिटरली अर्ली स्टेज स्टार्टअप। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 20 or 30 people in your team। Go for 3 to 4 team members who will work for you and share with them your vision first of all in your early stage because you don't have money because you want to start your journey without paying them. So share with them your vision. Tell them that hey we don't have money right now but we will make money after 5 months or after 6 months or after 1 year. Share those journey with them. Share with them those vision and then tell them that would you like to help me out or not to develop this product or service. One thing. Second thing, when you building your teammates or when you reaching out to teammates or once your teammates are on your board, when you start your journey, okay, always give respect to your teammates. It's really, really important. This is the one of the most important point. I just want to make sure that everyone should listen. If you're running a startup, if you want to plan a startup, that you have to give respect to your teammates. Why? Well, why it's so important? Because if you look at if someone is joining your startup, whether you're paying or not, it doesn't matter. It doesn't matter if you're paying them or not. If you are founder or if you are leader of your startup, always respect your teammates. Well, why? The reason behind it, your teammates can go and join any corporate world and they can earn more than what you are going to offer. Okay. But why they are working with you? Because they understand your vision. They left those money. They understand your culture of your startup. They know that if I put some suggestion or if I put some idea to my sir, means you, founder or a leader, he will respect my idea. I'm not a robot here. They will respect my idea. They will respect my suggestion, and maybe they will get advice from me also if we stuck in anywhere in coming future. So that's why your teammates working with you. So it's really important to give a respect to your teammates. So that's the second really, really important point. I just want to make sure that everyone should listen here. Spend time with your teammate. If your teammates is not working, if you give them some task, imagine that teammate is not working.
Sit with them, tell them why you are not working. These are the problem you are facing. Okay, I'm here to solve this. So make sure that whether it's a team expanding problem, money problem, product launch problem, making your product market fit, all this problem is a founder problem, not a team problem. So whenever if you don't have money, don't share those stuff with your teammates, or don't say that, hey, I don't have money. It's your headache. You have to figure out how you will bring money in your startup so that you can fuel your own startup and build another product. That's one thing. Coming back to the second part, and that is the team. So now from the team also, what is the second? How you reach out to build your initial team, like two, three, four members only. I'm right now at this early stage startup. First of all, reach out to your college colleagues, talk to them, share them that, hey, I'm working on this project. Would you like to help me out? If imagine you are good in coding and you need a graphic design. If your friend know graphic design, tell him, hey, would you like to join for just for 2 months? Spend time with 2 months. And if your friend is also feel like, okay, this is what I want to explore for next 1 more year, then you can consider him as a full-time employee. Okay. But for now, go with for 2 months, 3 months roadmap, and then work with them. Tell them that if they like your culture of your startup, maybe they will stay with you. Otherwise, you can figure out some other options also. The next option, what you can do, it's a LinkedIn, really, really groundbreaking platform right now for startups to expand their team. And there are, I know people who wants to work on a startup. They have qualification, they have those criteria that you require in your startup. You can go and LinkedIn type, like, imagine if I need a propulsion engineer, what I have to do? I just have to go open the LinkedIn. On the search button, I write the propulsion engineer. I go figure out those engineers. I drop them a message, arrange a meeting, talk to them. Hey, if imagine some of them are from UK, like most of my R&D teams. Okay, hold for a second. I just want to drink about it. Yes. So in my team, basically my team is divided into three parts. My first team is my core team. Okay. And then I have my own internship team also there. Okay. So imagine my in my core team, imagine 4 to 5 members are there. Then in my internship team, there will be a 6, 7 people who working under my core team. Okay. And then there is a third team also that is called advisory team. I'm going to talk about advisory team, how you can build your own advisory team at initial stage from scratch. So I already explained you how you can build your core team through LinkedIn. Also, you can do that. Sometimes, if you want to build your website, imagine, or if you want to build your own app or something that can be also work in hybrid mode. It's not always compulsory to sit in same room and work with your team members. Sometimes your team members are from abroad also. It's fine. Arrange a Google Meet. Arrange the way we are doing this session. Same way you can do that session with your teammates. Tell them, hey, this is what I want in my website, and give them time for week, for months, and get a follow up meeting with them. So these are the way you have to be flexible in the initial stage. Now, as a as a startup, what one thing you have to be make sure is that, never go for one plan. Always be ready for the A, B, C, D, E, F, G plan. Always, if A plan will not work, I will go for B plan. And always flexible. If your teammates is wants to complete their work in next 2 days, give them 3 days. Okay, take 3 days from my side, complete it. Once you satisfied with your work, then reach out to me, and then I will arrange a meeting. Work like that. आप उनको time दो, उनको अच्छी तरीके से समय दो. वो अगर 2 दिन मांगते हैं, आप उनको बोलो नहीं, आप 3 दिन लो. 3 दिन करने के बाद आप मेरे पास आओ और दिखाओ कि आपने क्या बना. और आप फ्लेक्सिबल रहो. आप उन्हें, अगर आप वर्चुअली वो काम करना चाहते हैं, वो फिजिकली नहीं आ सकते, फॉर हो सकता है कि आपके पास कई लोग चेन्नई से जुड़ जाएं, या कई लोग हो सकते हैं हैदराबाद से जुड़ जाए, बट आप अलीगढ़ से बिलोंग करते हो. तो आप उन्हें कन्विंस मत करो कि आप अलीगढ़ आओ, क्योंकि आप अर्ली स्टेज स्टार्टअप है. आप कहाँ से उनके स्टे का, फूडिंग का, अकोमोडेशन कहाँ से अरेंज करोगे? It's good to work virtually at initial stage.
And once you reach out to certain stage, when you have some initial fund also, I'm also going to talk about that point, funding, how you can raise funding without diluting any equity. That point I'm also going to discuss in today's session. So टीम में मैं टाइम इसलिए ज्यादा स्पेंड कर रहा हूँ बिकॉज आई बिलीव कि टीम एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है कि अर्ली स्टेज में जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर गवर्नमेंट ग्रांट्स होते हैं, वो दो चीज पे इन्वेस्ट करते हैं, फर्स्ट इज द फाउंडर एंड सेकंड इज द टीम। बिकॉज सिर्फ आपके पास आइडिया, आपके पास कोई प्रोडक्ट है नहीं, तो इट्स टू हार्ड टू लाइक to invest in something which is pre-revenue, pre-product. So it's quite hard. So that is the one thing important I just want to mention here. And the that is the team part. I already told you how you can uh, build your core team. I also tell you that how the same way you can reach out to interns also. For interns, don't treat intern as a core team member. That one thing you have to figure out as a founder. That's why I'm saying entrepreneurship or founder journey is not a journey that you go take a 3 year or 4 year course from university. It's a journey you learn every day, you fail every day, and you have to wake up every day and do the same thing. That is called an entrepreneurship journey. Okay. Coming back to the second point. Coming back to the second point is the last team, that is the advisory team. How you can make your advisory team. And I believe advisory team is really important. Whenever you get stuck now, you need some advice. So imagine some of the startup also reach out to me to join their board as advisor. Plus, how in initial stage, how you can do that? Reach out to your professor first. If you are building some product, imagine you are building your product to like a edtech product. Imagine you are building some edtech startup. Okay, एजुकेशन स्टार्टअप आप बना रहे हो, ठीक है। आप अपने प्रोफेसर को रीच आउट करो, जो आपके फेवरेट प्रोफेसर है, आप उनको रीच आउट करो, आप उनको बोलो कि सर मेरा इस तरीके का आइडिया है, एंड मैं आपको चाहता हूँ कि मैं आपको एज अ एडवाइजर अपने स्टार्टअप में लूँ, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप उनके फोटो, उनके नाम और उनकी एक्सपीरियंस को अपने पिच डेक में लगा सकते हो, पीपीटी में, प्रेजेंटेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ सेशन में। आप पिच डेक कैसे बना सकते हो, क्योंकि it doesn't matter how good your idea is, if you're not able to present in a good way, the value is zero. So it's really important how you present yourself. It's really important how you present your product. आपको फाउंडर के साथ एक गुड सेल्समैन होना चाहिए, क्योंकि आप सेल्स शुरू कर देते हो पहले दिन से जब आप स्टार्टअप स्टार्ट करते हो, क्योंकि आप अपना आइडिया बेच रहे हो पहले अपने आपके टीम को, आप आइडिया बेच रहे हो अपने एडवाइजर को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको सेल्स आना चाहिए फर्स्ट डे। अगेन आई वांट टू मेंशन हियर कि एंटरप्रेन्योरशिप एक जर्नी है, एक एक ये स्किल भी नहीं है, ये डिग्री भी नहीं है, एक जर्नी, आप हर दिन सीखने वाले हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सेल्स आना चाहिए। आप अपने प्रोफेसर को बोलो कि मेरा ये आइडिया है, मैं चाहता हूँ आप मेरे टीम में आओ, और एज एडवाइजर मैं आपको लेना चाहता हूँ। आप उनके फोटो, उनके प्रोफाइल आप अपने पिच डेक में लगाओ, और जब आप कहीं भी पिच करने जाओ तो आप बोलो कि ये एडवाइजर है हमारे टीम। और मुझे लगता है ये ज्यादातर क्राउड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है, तो लकली यू गाइज आल्सो हैव अ इंक्यूबेशन इन योर यूनिवर्सिटी टू। सो आपकी यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन भी अभी रिसेंटली खुला है, तो आप वो इंक्यूबेशन में जा सकते हो। वहाँ के जो डायरेक्टर है, आप उनको रीच आउट कर सकते हो कि सर मैं आपको ऑन बोर्ड लेना चाहता हूँ। आप जो इंक्यूबेशन के जो डायरेक्टर होंगे उनका स्किल मैनेजमेंट से होगा। सो आपके प्रोफेसर जो है आपके डिपार्टमेंट, वहां से आपको टेक्निकल स्किल मिल गया एज एडवाइजर, और आपकी जो इंक्यूबेशन है जहाँ अलीगढ़ में, वहां से आपको मैनेजमेंट स्किल मिल गया। तो ये दो प्रोफाइल आपके तीन सेक्शन में एडवाइजरी बोर्ड में आ गए, दो टीम मेंबर्स ऑलरेडी आपके बन गए एडवाइजरी बोर्ड में। सो इस तरीके से आप एडवाइजरी बोर्ड भी एक्सपैंड कर सकते हो। जब आप और अच्छा करोगे, हो सकता है कि आपको और अच्छी इंडस्ट्री से, फॉर एग्जाम्पल मेरा स्टार्टअप जो है स्पेस टेक से रिलेटेड, तो हमारी टीम में टॉप आईआईटी से प्रोफेसर जुड़े हैं, इंडस्ट्री से प्रोफेसर जुड़े हैं, इसरो से प्रोफेसर जुड़े हैं, साइंटिस्ट जुड़े हैं, ये सब हमारी टीम में, एडवाइजरी टीम में। So that is the team section. I just want to like conclude this thing. Maybe अगर आपको और अच्छे से टीम के ऊपर, स्टार्टअप्स के ऊपर बात करना है, हम maybe we will plan another session. So that is the team part. Now second part is the product part. कई बार क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट बना लिया, फॉर एग्जांपल आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो, और वो प्रोडक्ट की मार्केट ही काफी छोटी है,
मतलब मार्केट ही 500 करोड़ की है या मार्केट ही 100 करोड़ की है, तो उसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि मार्केट काफी छोटी है। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट डिसाइड करो अपने दिमाग में कि मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल रिसेंटली मैं अलीगढ़ गया था, देयर इज एज अ स्पीकर वन ऑफ द इवेंट यू गाइस ऑर्गेनाइज इज फरहान, so I was there and I saw some pictures, listen some pictures. There was one picture they pitching about they have this ether idea. Okay, they selling a customizable ether. ठीक है। सो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आप और भी ईथर बेचोगे, तो वो बोलते हैं नहीं, सिर्फ मैं कस्टमाइजेबल ईथर बेचूंगा। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ईथर की मार्केट काफी बड़ी है, ठीक है, बट वो बंदा बोल रहा है मैं सिर्फ कस्टमाइजेबल ईथर बेचूंगा। तो पहले तो फॉर एग्जांपल मैं ईथर लगाता हूँ, ठीक है, जो मुझे ईथर चाहिए वो बहुत कॉमन ईथर है, मैं अगर उसका कस्टमर बन भी सकता था, बट उसने खुद ही रोक दिया कि नहीं मैं वो ईथर बेचूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ कस्टमाइजेबल बेचूंगा। तो कभी कभी क्या होता है जब आप अपने प्रोडक्ट को स्पेसिफिक रख देते हो ना, तो मार्केट काफी छोटी हो जाती है। तो इसलिए फॉर एग्जांपल आप इंडियन मार्केट को टारगेट कर रहे हो, अब इंडिया में भी आप कह रहे हो कि नहीं मैं इंडिया में ईथर तो बेचूंगा, बट ईथर में भी मैं कस्टमाइजेबल ईथर बेचूंगा। तो मार्केट तो बहुत छोटी, बहुत रेयर ही मुझे लगता है कस्टमर्स होंगे जो कस्टमाइजेबल ईथर यूज करेंगे। और क्या आप कस्टमाइजेबल अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर आप कस्टमाइजेबल करके दे रहे हो, या फिर आप अपने दिमाग में कस्टमाइजेबल ईथर बना के कस्टमर को दे रहे हो? तो दीज आर द क्वेश्चन यू हैव टू बी फिगर आउट ऑन योर इनिशियल स्टेज इटसेल्फ, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप अपने प्रोडक्ट में यूएसपी कैसे बना सकते हो? यूएसपी का यूनिक सेलिंग पॉइंट, डिफरेंस क्या है आपके ईथर में या आपके प्रोडक्ट में या आपके सर्विस में, जो आपको आपके कॉम्पिटिटर से अलग बनाता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। कई बार क्या होता है कि कई ऐसे कंपनीज होती हैं जिनके प्रोडक्ट में कोई यूएसपी नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप भैया, आप कोई स्टार्टअप बनाने जा रहे हो और उसमें क्या हुआ कि आप कुछ यूएसपी नहीं ढूंढ पा रहे हो, मैं इस यूएसपी क्या बनाऊं अपने प्रोडक्ट में, कुछ यूएसपी मुझे समझ ही नहीं आ रहा बनाने के लिए। तो एक मैं एक कंपनी का एग्जांपल देता हूँ। क्या हुआ कि जब सारी कंपनी फर्स्ट टाइम जब पिज्जा इन्वेंट हुआ वेस्टर्न मार्केट में, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट यूएस, तो क्या हुआ सारी कंपनी बोर्ड मीटिंग अनाउंस कर रही थी कि हम पिज्जा में ऐसा क्या करें कि हमारा पिज्जा सबसे यूनिक बन जाए। तो सम ऑफ देम उन्होंने सजेस्ट किया कि हम इसके ऊपर कुछ ज्यादा सॉस डाल देते हैं, किसी ने सजेस्ट किया हम इसके ऊपर चीज डाल देते, किसी ने कहा हम इसकी टॉपिंग डाल देते। वहां पे एक कंपनी थी उसने कहा कि नहीं, हम पिज्जा में कुछ भी यूनिक नहीं करें, जैसे पिज्जा बन रहा है हम वैसे ही पिज्जा बनाएं, बट हम इस पिज्जा को अपने कस्टमर को 30 मिनट्स के अंदर डिलीवर करते हैं। तो उन्होंने प्रोडक्ट में कोई यूएसपी नहीं लाया, उन्होंने प्रोडक्ट के अराउंड यूएसपी लाया है, यूएसपी क्रिएट किया है। तो उस कंपनी का नाम हम जानते हैं, उस कंपनी का नाम है डोमिनोज। तो समटाइम जब आप प्रोडक्ट में यूएसपी नहीं ला पा रहे हो, तो आप कुछ उसके अराउंड कुछ यूएसपी क्रिएट कर दो, उसके सर्विस में यूएसपी क्रिएट कर दो। तो ये एक ऑप्शन है आपके पास, आप डोमिनोज से के मॉडल से सीख सकते हो कि अगर आपके प्रोडक्ट में कोई यूएसपी नहीं बन पा रहा है तो आप उसके अराउंड यूएसपी बनाओ, फर्स्ट थिंग। सेकेंड स्लाइड में ये सब आपको पिच डेक के हिसाब से बता रहा हूँ, एंड में आपको पूरा पिच डेक आप रेडी कर सकते हो अपना। थर्ड स्लाइड, फोर्थ फिफ्थ स्लाइड में आपको आता है कॉम्पिटिटर स्लाइड, रियली इंपॉर्टेंट। मैं जहां भी जाता हूँ ना, मतलब मैंने अभी तक देखा सब कंपटीशन में लगे मैं पहला हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताता हूँ, जब आप बोलते हो ना कि सिर्फ दुनिया में मैं ऐसा कर रहा हूँ, उसमें एक प्रॉब्लम है। आपके पास कोई आइडिया आ गया और आप बोलते हो सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, दुनिया में कोई कर ही नहीं रहा है, अब उसमें एक प्रॉब्लम। देखो आप पहले तो प्री प्रोडक्ट हो, प्री रेवेन्यू हो, ठीक है। एज अ इन्वेस्टर और एज अ मिनिस्ट्री, इफ आई वॉन्ट टू गिव यू सम मनी, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू फिगर आउट व्हाट इज योर वैल्यूएशन। अब आपने तो कोई प्रोडक्ट बनाया नहीं है और नहीं आपने कोई प्रोडक्ट बेचा अभी तक, आपके पास तो सिर्फ एक आइडिया है, तो मैं आपके इसमें पैसे कैसे डालूं? तो वहां पे आपका कॉम्पिटिटर काम आता है। आपका कॉम्पिटिटर जितना कमा रहा होगा ना, उतना ही वैल्यू आपके स्टार्टअप की होने वाली है फ्यूचर में, जब आप उस लेवल पे आओगे। तो उसके वैल्यूएशन से मैं आपका वैल्यूएशन अज्यूम कर सकता हूँ, इसलिए कंपटीशन जरूरी है। You can call them an indirect competitor. If you don't want to call them direct competitor, call them indirect competitor. It's fine. बट अगर आप बोलते हो कोई कर ही नहीं रहा है दुनिया में, तो इसमें दो प्रॉब्लम आ रहा है। पहले कि इन्वेस्टर सोचता है या फिर वो मिनिस्ट्री या इंक्यूबेशन के प्रोफेसर सोचते हैं कि आप रिसर्च अच्छे से नहीं किए हो, आप रिसर्च में अच्छे नहीं हो एज अ फाउंडर। तो आपको कभी भी ये नहीं करना, आप रिसर्च अच्छे से करो। कंपटीशन है आपको लगता नहीं है बिकॉज आपने रिसर्च नहीं किया। इंडिया में नहीं होंगे, अब्रॉड में होंगे, आउट ऑफ इंडिया होंगे, बट होंगे कॉम्पिटिटर। आप अच्छे से रिसर्च करो, फर्स्ट थिंग।
जब आप उनके बारे में रिसर्च कर रहे हो तो डीपली रिसर्च करो। पर मंथ वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वो सेल्स किस किस तरीके से कर रहे हैं, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, वो सब कुछ आप जानो। और उनकी अभी वैल्यूएशन कंपनी की क्या है, उन्होंने कितनी फंडिंग रेज की है, किन किस इन्वेस्टर से की है, वो सारी चीज इंपॉर्टेंट है। एज अ फाउंडर आपको ये सारी स्किल आनी चाहिए। एज अ एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी जब आप जा रहे हो तो ये स्किल भी आपको आनी चाहिए। तो दैट इज द competition slide first thing. And in competition there's I believe that's all in the competition slide, तो आपको ये आना चाहिए कंपटीशन स्लाइड में। एंड कॉम्पिटिटर्स को आप अच्छी तरह जानो, इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों कॉम्पिटिटर निकालो। और कॉम्पिटिटर भी आप तीन तरीके के निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक जो काफी बड़े बन चुके हैं, जिनकी वैल्यूएशन बिलियन डॉलर, मे बी दे बिकम यूनिकॉर्न। फॉर एग्जांपल यू आर कम्पीटिंग विथ व्हाट यू कॉल, अभी बायजूस तो बहुत खराब चल रहा है, बट काफी स्टार्टअप है जो यूनिकॉर्न बन चुके हैं, उनसे फॉर एग्जांपल उनसे कंपेयर उनको आप मेंशन कर सकते हैं जो यूनिकॉर्न बन चुके हैं। सेकंड, आप उनको मेंशन करो जो मिडिल में अभी जो अच्छा सेल्स करे, वो ना यूनिकॉर्न बने नहीं वो बहुत ही अर्ली स्टेज है। एंड थर्ड, आप उनको मेंशन कर सकते हो जो आपके आपके लेवल पे काम कर रहे हैं, अभी थोड़ा बहुत उन्होंने फंडिंग रेज किया, प्री सीड और सीड राउंड उन्होंने रेज किया, उनको आप मेंशन कर सकते हो। तो थ्री कैटेगरी में आप मेंशन कर सकते हो। एंड उसके बाद उसी स्लाइड में आपको मेंशन करना होगा कि आप उनसे अलग कैसे हो। मतलब आप ये सर्विस उनको दिखाना कि सर देखो वो इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करेंगे। हम इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, हम इससे अफोर्डेबल सस्ता दे रहे हैं, या हम इससे फास्ट दे रहे हैं, हमारा एआई है, या फिर हम ऐप के जरिए दे रहे हैं, वो मैनुअली दे रहे हैं। सो एंड सो फोर्थ थिंग है, वो आपका सेक्टर बाय सेक्टर वो वैरी करता है। सो लुक एट दोस थिंग्स, दैट इज योर कंपिटिटर स्लाइड। नाउ यू हैव अ स्टार्टअप। अब आपको ब्रांड चाहिए, बिकॉज अब आपने अपने स्टार्टअप का नाम रख लिया XYZ, बट आपके स्टार्टअप को कोई नहीं जानता है। तो आपको तो किसी का ब्रांड चाहिए ना जिससे आपको लोग जाने। तो आप, मैंने मेंशन किया कि आपके यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन खुला है, आप इंक्यूबेशन में जाके अपने स्टार्टअप को इंक्यूबेट कर लो। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जब नेक्स्ट टाइम आप अपने पिच करने जाओगे, प्रेजेंटेशन करने जाओगे, तो आप बोलना वी आर द आई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंक्यूबेटेड स्टार्टअप XYZ, देन टेल योर नेम ऑफ योर स्टार्टअप। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब आप वहां इंक्यूबेट हो जाओगे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इंक्यूबेशन का कुछ लोगो होगा, आइकन, उससे आप अपने पिच डेक में लगा सकते हो। उन्हें आप पार्टनर भी बोल सकते हो, कोलैबोरेशन भी बोल सकते हो, इंक्यूबेटेड भी बोल सकते हो, ये चीजें बोल सकते हो। ये तो एक हो गया जो इजी वे है क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी से। सेकेंड वे जो थोड़ा हार्ड है, वो कैसे? फॉर एग्जांपल आप आई मान लेते हैं कि आपका एक स्टार्टअप है जो डीप टेक से रिलेटेड, डीप टेक मतलब आप ड्रोन बना रहे हो, ठीक है। अब अगर आप ड्रोन बना रहे हो और आईआईटी कानपुर को रीच कर रहे हो, आईआईटी कानपुर, तो आईआईटी कानपुर किन स्टार्टअप को इंक्यूबेट करते हैं अपने यहाँ? जो एग्रीकल्चर और बायोटेक में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, जो एग्रीकल्चर और बायोटेक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। आप उन वहां पर अप्लाई करते हो और आप रिजेक्ट हो जाते हो और आपको लगता है मेरे आइडिया में दम नहीं। देखो प्रॉब्लम क्या है ना कि आप गलत दरवाजे खटखटा रहे हो, रॉन्ग, यू आर नॉकिंग अ रॉन्ग डोर। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप जो भी इंक्यूबेशन में रीच आउट कर रहे हो, हर इंक्यूबेशन की खुद की वेबसाइट हो, अब वेबसाइट को खोलो, देखो कि उनके वेबसाइट जब आप ओपन करते हो तो वहां पे आता है पोर्टफोलियो सेक्शन। पोर्टफोलियो में जाओ और देखो किस किस तरीके के स्टार्टअप वहां इंक्यूबेटेड है। क्या वो एग्रीकल्चर से हैं, क्या वो बायोटेक से हैं, या वो डीप टेक से हैं, या मेडिकल से हैं, या D2C हैं। वो आप देखो, अगर वहां पे ज्यादा आपके जैसे स्टार्टअप मिलते हैं, आपके सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो आप वहां अप्लाई करो, वहां आपके चांसेस 99% बढ़ जाएंगे सेलेक्ट होने के। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि मैं इंक्यूबेशन में जाऊं क्यों? मतलब इनको, व्हाई शुड वी गो एंड इंक्यूबेटेड इन सम यूनिवर्सिटी लाइक IIT कानपुर, IIT दिल्ली, और एनी इवन NIT, ट्रिपल IT, और अलीगढ़, और एनी यूनिवर्सिटी, व्हाई शुड आई गो एंड गेट इंक्यूबेटेड? क्योंकि इस इंक्यूबेशन में आप जब इंक्यूबेट होते हो तो ये इंक्यूबेशन गवर्नमेंट से फंडेड होते हैं। गवर्नमेंट से फंडेड मतलब गवर्नमेंट से, फॉर एग्जांपल आपको कुछ फंड चाहिए, मान के चलते आपको 10 लाख चाहिए आपके प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, आपके स्टार्टअप के लिए, इनिशियल प्रोजेक्ट स्टार्टअप के लिए, जिसमें आपको डाइल्यूट भी नहीं करना। गवर्नमेंट के जो फंड्स होते हैं ना, उसमें फायदा ये होता है, उसे हम ग्रांट्स बोलते हैं फर्स्ट थिंग, उसमें आपको इक्विटी डाइल्यूट नहीं करना रहता है। फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री देखो ऑफ साइंस एंड क्या हुआ। टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ ग्रांट्स हैं, ठीक है, वो आपको चाहिए, उसके 10 लाख है, ठीक है, आपको चाहिए। अब वो आपको डायरेक्ट मिनिस्ट्री नहीं देगी, वो आपको देगी यूनिवर्सिटी के थ्रू। वो यूनिवर्सिटी को देगी फंड और यूनिवर्सिटी आपको फंड करेगा।
इसीलिए आपको इंक्यूबेशन में इंक्यूबेट होना कंपलसरी है अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट्स चाहिए, फर्स्ट थिंग। ठीक है, आपको उस यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेट होना पड़ेगा, और फिर आपको अप्लाई करना होगा कि मुझे ये ग्रांट्स के लिए चाहिए 10 लाख, 7 लाख, 12 लाख, 1 करोड़ तक की आज के टाइम में ग्रांट्स है, जहाँ पे आपको इक्विटी कुछ भी डाइल्यूट नहीं करना है। इक्विटी डाइल्यूट नहीं करना मतलब कंपनी का हिस्सा नहीं देना है, कुछ भी कंपनी आपकी रहेगी उसमें से। जैसे इन्वेस्टर से जब आप फंड लेते हो तो आप हिस्सा देते हो अपने कंपनी, 10%, 5%, जो भी वो वैल्यूएशन देता है। बट गवर्नमेंट जब पैसा देता है तो वो कोई इक्विटी नहीं लेता, बट उसके लिए आपको इंक्यूबेट होना पड़ता है यूनिवर्सिटीज। So that is the one thing I just want to mention here. And the okay, so incubation, that's one thing. Second thing, incubation से और क्या फायदा होता है? incubation से जैसे मैंने आपको बताया कि आप अलीगढ़ के लोगो लगा सकते हो, बोल सकते हो इंक्यूबेटेड। जब आप आईआईटी से जुड़ोगे, एनआईटी से जुड़ो, तो आप वो बोल सकते हो कि हम इनके साथ भी हैं। तो उससे आपकी क्रेडिबिलिटी पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अगर आपको इंक्यूबेट करता है अपने यहाँ, तो वो तभी करेगा जब आपके आइडिया में दम है, जब आपके आइडिया में कोई क्रेडिबिलिटी है। वो हर कोई इंक्यूबेट नहीं करेगा। तो उससे एक वैलिडेशन आता है जब आप बोलते हो ना इन्वेस्टर्स को या किसी को भी कि आई एम इंक्यूबेटेड है, ये एक्स वाई जेड। जैसे हम वी आर, हमारा स्टार्टअप इंक्यूबेटेड है ट्रिपल आईटी हैदराबाद में, एंड वी आल्सो बैक्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। व्हेन वी आर सेइंग दिस थिंग्स ना, इट शोज क्रेडिबिलिटी। ओके, हमें ट्रिपल आईटी हैदराबाद सपोर्ट कर रहा है, हमें मिनिस्ट्री ने फंड किया और हमें मिनिस्ट्री सपोर्ट कर रही है। सो इट शोज क्रेडिबिलिटी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब आप इनक्यूबेट हो गए वहां, तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, बिकॉज आपके स्टार्टअप को कोई नहीं जानता। यू आर अर्ली स्टेज स्टार्टअप, योर स्टार्टअप नेम इज एक्स वाई जेड, आई डोंट नो। सो हाउ यू शो योर क्रेडिबिलिटी, आप ब्रांड कैसे बनाओगे? मार्केटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रांड इंपॉर्टेंट है। आप मार्केटिंग के पीछे मत भागो, ब्रांड बनाने के पीछे भागो। उससे क्या होगा कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट लाओगे ना, वो ऑटोमेटिकली सेल आउट हो जाएगा। और अगर आप डी टू सी बिजनेस में जा रहे हो, यहाँ पे मैं ऐड ऑन कर देता हूँ एक पॉइंट। अगर आप डी टू सी बिजनेस में हो या बी टू बी और बी टू सी हो, तो आपको सोशल मीडिया पे काफी अच्छे होना चाहिए। आप जैसे हमारा बी टू बी बिजनेस है, तो इट डजेंट मैटर हाउ गुड वी आर डूइंग ऑन सोशल मीडिया। सो बिकॉज हमारे कस्टमर्स जो है वो बी टू बी है, बिजनेस टू बिजनेस है। बट अगर आप डी टू सी हो, जैसे बोट है, बोट जो कंपनी हेडफोन है, वो डी टू सी है, वो डायरेक्ट टू कंज्यूमर है। तो उनके लिए सोशल मीडिया पे, अमन आप जानते हो शार्क टैंक से, तो वो मार्केटिंग क्यों करते हैं इतना? क्योंकि वो डायरेक्ट कस्टमर से डील करते हैं। तो अगर आपका उस तरीके का प्रोडक्ट है, तो आप सोशल मीडिया पे आपको अच्छा नंबर आना चाहिए। अच्छा नंबर का मतलब है सोशल मीडिया पे अच्छे फॉलोवर्स होने चाहिए। वो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो, कुछ छोटे रील्स बना सकते हो, वो मतलब जो भी आप मार्केटिंग आप अपने स्ट्रेटेजी कर सकते हो उसके ऊपर, वो आप कर सकते हो। दैट्स वन थिंग। सो ओके, दैट इज योर व्हाट यू कॉल इंक्यूबेशन का मैंने आपको आइडिया दिया है। टीम मैंने बता दिया, प्रोडक्ट मैंने बता दिया है। सो कंपटीशन मैंने स्लाइड बता दी है, टीम सेक्शन मैंने बता दिया है। नौ द फंड से भी रिलेटेड मैंने बता दिया है कि दैट इज द वन फंड दैट आई टोल्ड यू अबाउट द गवर्नमेंट फंड। द सेकेंड फंड इज हाउ यू कैन रेज इट फ्रॉम इन्वेस्टर। और मुझे लगता है अगर आप अभी अर्ली स्टेज हो, तो आप गो फॉर द गवर्नमेंट फंड फर्स्ट, and once you build something, a prototype or early attraction, and then go for the investor funding. In the early stage, don't directly go for investor, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। बिकॉज आपका सिर्फ आइडिया, इन्वेस्टर कभी भी आज के टाइम में तो आइडिया में नहीं इन्वेस्ट करता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो आप कुछ बना लो, कुछ नंबर्स। और नंबर्स में नंबर वर्ड क्यों बार बार यूज करो? नंबर्स नंबर्स नंबर्स। क्या हुआ कि कई बार मैं गया तभी एक जगह पिच करने, वहां पे एक बंदा बोलता है वी हमारी मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। बहुत बड़ी क्या आंसर होता है? व्हाट इज बहुत बड़ी? when you saying na, imagine I am saying that our industry is around $360 billion, and my launch last mile ride market is $7.5 billion. So यहाँ पे आप नंबर बताते हो, तो यहाँ पे आपको आपकी मार्केट की वैल्यू पता चलती है, और वहां पे आप कितना बना सकते हो वो पता चलता है। इसलिए आप नंबर में हमेशा बात करो कि आपकी मार्केट कितनी बड़ी है। और आप जब आप प्रोडक्ट में जब रेवेन्यू भी सेल कर रहे हो, तो जैसे आप कोई भी पायलट करते हो, पायलट होपफुली आपको पता होगा पायलट क्या होता है। मान लो कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, और आपने अभी तक कुछ भी सेल भी नहीं किया, तो आप क्या करते हो? आपने 10 सेल किया, 10 प्रोडक्ट बेचा, उसे बोलते हैं पायलट। ठीक है, तो जब भी आप पायलट करो, कोशिश करो कि फ्री में ना दो, आप कुछ पैसे पे करके दो। क्योंकि जब आप फ्री में देते हो ना, अगर आपका पायलट का नंबर आप बोलते हो कि 20 कस्टमर ने मेरा यूज किया, इन्वेस्टर्स को वैल्यू जीरो ले लेते, क्योंकि उन्होंने पे नहीं किया। बट अगर आप बोलते हो कि 10 ही कस्टमर ने लिया बट उन्होंने पे किया, तो उसकी वैल्यू है। तो जब आप पायलट भी करने जाते हो अपने प्रोडक्ट की, तो आप कोशिश करना कि गो फॉर द पेड वर्जन। इमेजिन दैट यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट ऑन 500 रुपीज, आप 500 रुपये में बेचना चाहते हो,
बट ऑब्वियसली आप 500 रुपये में कोई नहीं खरीदेगा। फॉर एग्जाम्पल इन योर यूनिवर्सिटी इफ यू सेलिंग फॉर योर स्टूडेंट, आपके हो सकता है आपके फ्रेंड्स ना खरीदे 500। टेल देम ठीक है मैं 500 रुपये में नहीं बेचूंगा, मेरा ये प्रोडक्ट बनाने में 100 रुपये गए हैं, मैं मुझे 100 रुपये से वापस चाहिए, मुझे 100 रुपीज में सेल करना, बट फ्री में मत सेल करना। फ्री में सेल करने से क्या होता है कि अगर आपके नंबर 50 भी हुए ना तो वो वैल्यू नहीं होते पायलट के, इसलिए ऑलवेज गो फॉर द स्मॉल, ऑलवेज गो फॉर द पेड वन, don't go for the smaller number, go for 99 or 199 something like that, but always go for the paid one, don't go for the free one. That's my advice on the pilot side. So that's all, and I believe uh, if I'm ready to answer any question that you guys want to ask. I request participants if they have any question, the question answer session is now open. You may please proceed. Assalamu alaikum, sir. My name is Fine. Abdullah Ayaz. I want to ask you, sir, I want to make an online business in clothing business, sir, specifically in clothing business for women, sir. My father is in this business, but he is in offline business. He has a shop, but I want to make it to an online business. So what should be my steps and what should I do to to do my research on stuff how to start my entrepreneurship in this journey? तो सबसे शॉर्ट तरीका क्या है कि अभी आप हैव यू एवर सीन दैट शार्क टैंक, दैट Yes, शार्क sir. टैंक? ठीक है। सो जैसे आप वहां पे देखोगे कई, जैसे ही आपने बताया कि मैं ऑनलाइन सेल करने जा रहा हूँ, पहले तो एक वो कैटेगरी आप अब अपनी कॉन्वर्जेशन को, अपनी क्वेश्चन को आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो। पहली चीज आप बोलते हो कि मैं ऑनलाइन सेल करूंगा, मीन्स यू वांट टू सेल D2C फर्स्ट थिंग, एंड यू वांट टू सेल ऑफलाइन। व्हेन यू सेइंग ऑफलाइन देयर इज टू ऑप्शन, वन फ्रॉम योर वेबसाइट एंड फ्रॉम योर लाइक प्लेटफॉर्म लाइक Amazon, Flipkart एंड अदर XYZ ई कॉमर्स। सो जब आप बोल रहे हो ऑफलाइन, तो ऑफलाइन आप अपनी वेबसाइट की बात कर रहे हो या फिर Amazon, फ्लिपकार्ट ये सब की बात कर रहे हो, मिंत्रा की बात कर रहे हो? सो वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप Amazon, फ्लिपकार्ट पे, तो वहां पे जाके आपको अपना रजिस्टर करना होगा, अपनी आईडी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यू हैव टू मेक श्योर दैट कि अब आपकी जो फैब्रिकेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने कोई प्रोडक्ट, कोई टी शर्ट या XYZ कुछ भी आपने डिस्प्ले किया Amazon पे या फिर आपने खुद की वेबसाइट पे, ठीक है, और वहां से किसी ने ऑर्डर किया और वहां पे ऑर्डर ज्यादा आ गए, मान लो कि आपने 10 ही आपने स्लॉट बनाए थे बट वहां पे ऑर्डर 100 के आ गए, तो क्या आपके पास उतनी कैपेसिटी है अभी उतनी फुलफिल करने के लिए? फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कि ऑर्डर ही आपके कम आए, मान के चलते हैं कि आपके ऑर्डर 5 के आए हैं और आपने 100 टी शर्ट ऑलरेडी बना के रखा है, तो आपके पास डेट स्टॉक आ गया जो आपकी रेवेन्यू पे इफेक्ट पड़ेगा। सो एट अभी जो मार्केट में जो चीजें चल रही हैं वो काफी ज्यादा फास्ट फैशन है, मीन्स काफी जल्दी लोग अपने प्रोडक्ट, अपने ड्रेस को चेंज कर रहे हैं, एवरी डे वांट टू वेयर समथिंग न्यू। तो जहाँ पे फास्ट फैशन है इतनी ज्यादा, और जहाँ पे आप जिस मार्केट में जा रहे हो वो काफी ज्यादा क्राउडेड मार्केट है, ठीक है। सो बट यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि जब क्राउडेड है तो आपके कॉम्पिटिटर को आप आसानी से रीच आउट कर सकते हो, उनके बारे में आप पढ़ो, उनके उनके प्रोडक्ट को आप Amazon पे जाके रेटिंग करो, वहां पे कस्टमर क्या बोल रहे हैं, उनको एडवाइस क्या कर रहे हैं, जो आप अपने अंदर वो एडवाइस इनिशियल स्टेज में अभी ला सकते हो और लॉन्च करके उनसे ज्यादा आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो ये बेसिकली अभी जो आपका फर्स्ट 1-2 मंथ जो आपका जाना चाहिए वो सिर्फ R&D में जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ही जाना चाहिए। आप रिसर्च करो अच्छी तरीके से कॉम्पिटिटर पे, आप ई कॉमर्स जो कंपनीज है जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन सबको आप मेल करो, उनसे बात करो कि हम किस तरीके से सेल कर सकते हैं। प्लस आप अपनी वेबसाइट एक बनाओ, वेबसाइट पे कुछ प्रोडक्ट्स डालो, उन प्रोडक्ट्स की आप रील्स बना के अपने इंस्टाग्राम पे, जो ऑफिशियल आपके इंस्टाग्राम आपके स्टार्टअप के नेम पे होंगे, उस पे आप रील्स चलाओ, पेड रील्स चलाओ 8,000 के, 5,000 के। और उस टाइम में चलो जिस टाइम मार्केटिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी रमजान के बाद ईद आने वाला है, तो ये काफी ज्यादा चांसेस है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बूम मार सकता है, वो काफी ज्यादा वहां पे आपके सेल्स हो सकते हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग दैट दिस इज द राइट टाइम टू बिल्ड योर ओन वेबसाइट, पुट सम प्रोडक्ट ऑन इट, ओके। सेकेंड थिंग, यूज दोस लिंक एंड प्रोडक्ट ऑन योर रील्स, ठीक है। रील्स में आप डालो, बोलो कि आप अभी आके सेल कर सकते हो, ये 5,000 के, बट इफ यू बुक राइट नाउ यू विल गेट इट इन
2,000 रुपीज, इफ यू विल गेट इट इन 1,000 रुपीज। तो इस तरीके की सेल्स स्कीम है जो आप वहाँ पे यूज कर सकते हो और सेल कर सकते हो। सो आई बिलीव दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर वर्क फ्रॉम योर ओन वेबसाइट। और जब वहां पे आपके नंबर अच्छे आने लगेंगे, रेवेन्यू अच्छे आने लगे, देन आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पे भी आप सेल आउट कर सकते हो। सो यहाँ पे आपके 2 से 3 टीम मेंबर्स काफी हैं, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता। और आप अलीगढ़ की भी मदद ले सकते हो इसमें, इंक्यूबेशन के आप वहाँ इंक्यूबेट हो सकते हो, वहां से कुछ एडवाइस ले सकते हो आप। और अभी जो आपको टीम लगेगी वो दो मुझे लगता है, जहां तक कि एक तो सोशल मीडिया के लिए लगेगा एक टीम, एक मेंबर जो सोशल मीडिया अच्छी तरीके से जानता हो। सेकंड, आपको वेबसाइट डेवलप करने में, तो वेबसाइट में भी आप अभी HTML वाले पे मत जाओ, आप वर्डप्रेस वाली वेबसाइट पे जाओ, उसको आपको चीप भी पड़ेगा और आप इजीली लॉन्च कर सकते हो। सो Thank you, sir, for answering to my question. Hi, am I audible? यस यू आर। Yeah, yeah, my name is Uwais. I'm currently a recent graduate from Aligarh Muslim University in chemistry. So I just started my startup, an an outdoor advertisement business. So I've raised funding for the startup. So my question is that so how can I build an advisory team? Advisory, when you're saying advisory team, for why you need an advisory team? Have you ever asked yourself like why you need your in your startup advisory team? वो क्या एक्सपेक्ट कर ले आएंगे आपके एडवाइस, आपके स्टार्टअप में ज्वाइन करने से आपको क्या फायदा होगा? या सो बेसिकली मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे रीच आउट करना है ब्रांड्स को लाइक सैमसंग एंड बोट एंड रिलायंस। तो इनके लिए मुझे एडवाइजरी टीम चाहिए, या टीम हो या एक बंदा हो, क्योंकि एक माय कॉन्ट्रैक्ट इज इन इंटरलाइट एंड नाउ इज इन एंड अनदर वन इज आईसर्टिस। सो उनको रीच आउट किया था तो वो बोले कि आप 6 महीने इनके दरवाजे खटखटाएंगे तब जाके ये ब्रांड्स आपको एक बार मीटिंग फिक्स कर सकते हैं 6 महीने के टाइम तक कोशिश करने के बाद। तो मुझे एक इसलिए टीम चाहिए, एडवाइजरी टीम, क्योंकि इन ब्रांड्स को पहुंचना ही मेरा टारगेट है। क्योंकि अगर मैं छोटे ब्रांड को टारगेट करता हूँ वो 2 महीने 3 महीने का मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, डील दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ब्रांड्स ही चाहिए होंगे। और आपने अभी बताया कि आपने फंडिंग उठा ली है, राइट? आपने फंडिंग यस, रेज कर लिया, आपने यस, कहाँ यस, से यस। फंडिंग की? सो इन रिगार्ड योरसेल्फ के वो यहाँ पर एक बिजनेसमैन है, ही इज एन एंटरप्रेन्योर, सो ही वाज impressed by the idea, so that's why. सो मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है तुम आपसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको पैसा दिया, ठीक है, एज ए इन्वेस्टर, ओके, या मुझे आपके आइडिया में पसंद है, मैंने आपके आइडिया में इन्वेस्ट किया, तो मैं सिर्फ मनी थोड़ी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं तो अपना टाइम भी इन्वेस्ट करूंगा ना, फॉर एग्जाम्पल, Right. ठीक है, राइट? सो जब आपने उनसे फंडिंग मांगी थी या जब आपने प्रपोज किया था कि आई नीड सम मनी इन माय स्टार्टअप, ओके, तो सिर्फ आपने पैसे ही मांगा या आपने बोला कि मुझे आई नीड नेटवर्किंग टू, बिकॉज अभी जो आपके स्टेज में नेटवर्किंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। राइट, राइट। सो मैंने उनसे कहा था कि आई नीड मनी एंड आई नीड नेटवर्क, तो वो दोनों के लिए एग्री कर गए। बट फॉर द बिग ब्रांड्स देयर उनके पास बिग ब्रांड्स के लिए कोई नेटवर्क नहीं है, लाइक सैमसंग, बोट, रिलायंस, इन इन ब्रांड्स के लिए कोई नेटवर्क नहीं है उनके पास। ग्रेट। अब मुझे आप ये बताओ कि आपने फंडिंग उठा ली, ठीक है, और आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो बोल रहे हैं मेरे पास कोई बड़े ब्रांड के नेटवर्क नहीं, जस्टिफाइड, राइट, ठीक है। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप बोल रहे हो कि मैं छोटे कस्टमर्स के पास इसलिए नहीं जाऊंगा, ब्रांड्स के पास इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको वो बड़ी डील नहीं दे रहे हैं या वो टाइम फ्रेम उनके काफी छोटे होते हैं, राइट? राइट। तो आप मुझे ये बताओ अभी आपके पास नंबर्स क्या है कस्टमर्स के, आई विल कितने रीच कितने आउट टू। कस्टमर अभी तक? हाँ, नहीं, आपने मैंने सेल अभी तक कितना किया है, सर्विस कितना प्रोवाइड किया? अभी तो एमवीपी तैयार हो रहा है, आरएनडी चल रहा है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 30 कस्टमर्स को रीच आउट किया है एंड दे आर एग्रीइंग फॉर द 3 और 4 मंथ के लिए वो तैयार है। नहीं, वैसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लो कि मैंने आपके जैसी सर्विस स्टार्ट की, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे amazon, फ्लिपकार्ट, XYZ मेरे कस्टमर बन जाए, राइट? यही आप चाह रहे हो? हाँ, लोकल ब्रांड पे फोकस रखना है इनिशियली, लेकिन वो लॉन्ग टर्म डील नहीं देंगे। तो ठीक है, इसलिए तो उन पे शॉर्ट टर्म फोकस रखना है, लॉन्ग टर्म मुझे ब्रांड्स के ऊपर जाना ठीक है, बट मान के चलो कि फॉर एग्जांपल मैं जोमेटो हूँ या फ्लिपकार्ट हूँ या amazon हूँ, ठीक है, आप मेरे पास आते हो,
ठीक है। right, तो जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आप रिज्यूम लेकर जाते हो, ठीक है, और रिज्यूम में क्या होता है, आपकी क्वालिफिकेशन होती है। फिर आपके क्या होते हैं, आपके सर्टिफिकेट कोर्स के ऑप्शंस होते हैं, फिर आपने कितने स्कूल्स में प्रोजेक्ट किए हैं। तो ये बेसिकली ये क्या है कि आप दिखा रहे हो कि आपके पोर्टफोलियो में कितनी एक्सपीरियंस है, आप कितने एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि मैं अमेजोन हूँ, मैं फ्लिपकार्ट हूँ, आप मेरे पास आते हो कि मैं सर आपको ये सर्विस देना चाहता हूँ। यही सर्विस मैं और बड़ी बड़ी एजेंसी से ले सकता हूँ, बट मैं उनसे नहीं लेके आपको पहला क्यों दूं, ये क्वेश्चन आप खुद के दिमाग में डाल डाल के सोचो, पहली चीज। सेकेंड चीज, कि जब आप उनके पास जा रहे हो तो वो पूछते हैं कि आपने ये सर्विस किसको किसको दी है। तो आप बोलते हो कि नहीं, मैं पहली बार अमेजोन के पास आ गया। तो right, आपके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है ना, आपके पास कोई, आपने अभी तक कोई पायलट भी नहीं किया। आप बोल रहे हो कि मैं छोटे ब्रांड के पास गया, वो बोल रहे हैं मैं ले लूंगा, बट मैं उनको इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वो मुझे बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दे रहे। आपको बड़े क्यों, बड़ा प्रोजेक्ट या बड़े पैसे पे अभी आपको नहीं जाना, आपको क्या जाना, आपको नंबर पे जाना। जैसे ही मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आपके कितने कस्टमर है, आपको बोलना चाहिए था मेरे पास अभी 20+ कस्टमर्स है और वो सारे पेड कस्टमर्स है। तो मैं नहीं पूछने जा रहा था कि वो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, या ओला है, या एक छोटा सा स्टार्टअप एजेंसी है अलीगढ़। तो यहाँ पे आपको क्या है कि आपको फोकस करना है कि कितने ज्यादा आप नंबर्स में ला सकते हो कस्टमर्स। आप जब आप दोबारा अमेजोन के पास जाओ या जोमेटो के पास या XYZ कोई भी कंपनी बड़े एजेंसीज के पास जाओ, तो आप बोलो कि हम अब तक 50 लोगों को ये सर्विस दे चुके हैं, 50 एजेंसीज के। और ये 50 एजेंसी जो आपसे सर्विस लिया है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी एजेंसी हूँ और मैंने आपसे सर्विस लिया 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ आप मेरे पास आओगे रिव्यू लेने के लिए, मैं आपको वो रिव्यू दूंगा, आप वो रिव्यू अपने वेबसाइट पे डालोगे लोगों के right, साथ, और वहां पे आप मेरी वीडियो डालोगे जहां पे कस्टमर बता रहा है कि प्रोडक्ट कैसा है। तो आप अमेजोन को बोल सकते हो, फ्लिपकार्ट को बोल सकते हो कि सर आप मुझसे मत पूछो मेरा प्रोडक्ट कितना अच्छा है, आप मेरे कस्टमर को कॉल करके रिव्यू ले सकते हो। right, right, तो मतलब सी, अगर कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है, हर का ड्रीम होता है। अगर मैं अभी से सोच के चलूँ कि इलॉन मस्क मेरी कंपनी का कोलैबोरेटेड बन जाए, हमारा कोलैबोरेशन डायरेक्ट इलॉन मस्क कंपनी के साथ हो जाए, तो इट्स नॉट मेक सेंस। सो एट योर इनिशियल स्टेज व्हाट योर टास्क शुड बी कि आप जितने ज्यादा आप फास्ट ग्रो कर सकते हो, जितने ज्यादा कस्टमर्स ला सकते हो, जितने ज्यादा रेवेन्यू ला सकते हो, वो ज्यादा अच्छा है, rather देन जस्ट गोइंग कि हम Amazon फ्लिपकार्ट को ले आऊं। वही सबके ड्रीम है ना कि बड़े कस्टमर्स आ जाए। right, सो आई थिंक यू शुड गो फॉर द स्मॉल। आप इस छोटी कंपनी के साथ जाओ, वो 1 महीने के लिए दे रहे, कम पैसा दे रहे, कोई टेंशन नहीं, आप उनसे लो। आप उनसे लो एंड लेने के बाद आप उनसे रिव्यू भी लो, उनके रिव्यू को आप रिटेन और वीडियो दोनों में लो। आप सोशल मीडिया पे डालो और बोलो कि ये कस्टमर मेरे बोल रहे हैं मेरे प्रोडक्ट के बारे में। हो सकता है कई बार वो खराब भी रिव्यू दें, अब दोबारा अपने टीम के पास आओ और बोलो कि ये देखो ये कस्टमर ये चीजें चेंज करने के लिए दे रहे हैं, और उसके बाद अपने प्रोडक्ट को चेंज करो, सर्विस को चेंज करो, और फिर बाद में जब आप इन्वेस्टर के पास जाओ, तो इन्वेस्टर से फंडिंग लेने के लिए या फिर जोमैटो अमेजोन कोई भी बड़ी कंपनी के पास जाओ, तो उन्हें ये मत बोलो कि मैं प्रोडक्ट से चेंज किया हूँ अपने प्रोडक्ट को, ए से बी पॉइंट सी ई डी एल एल लेवल तक लेकर के आया हूँ। नॉट बिकॉज हमें ये प्रोडक्ट को चेंज करना था, हमारे कस्टमर ने ये प्रोडक्ट को एडवाइस किया और उससे हमने चेंज किया है, ना कि हमारी टीम ने चेंज किया है। सो हम कस्टमर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और उससे हम अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बना रहे हैं, ना कि हम खुद से उस प्रोडक्ट को रोज R&D कर रहे हैं अपने लैब में बैठ के, which is sound much better. right, right, सो आप ये कर सकते हो। तो वैसे ही मुझे सिर्फ ये लगता है, एज अ फाउंडर मैं बोल रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि हमें वो चीजें करनी चाहिए एट दिस स्टेज जो पॉसिबल है, rather देन just running for big venture, what you call industry peoples. I don't think that makes sense at this early stage. It is good if you get more numbers on revenue, more numbers on customers, and I believe that अगर ये दो चीजें होंगी, आपको लेंस कार्ड, फ्लिपकार्ट, Amazon, हर कोई आपको वो डील देगा। सो देयर इज नो वरी अबाउट दैट। आप बड़े गोल उसके टेंशन ही मत लो आप। बड़े पीपल, बड़े मनी, बड़ा फेम, ये सब बाई प्रोडक्ट है। आप ये चीजें, बेसिक चीज, अगर आपका बेस स्ट्रांग हो ना, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आएंगी। सो यू डोंट वरी अबाउट दोस थिंग्स। right. ठीक है, thanks for the time, thanks for the answer. भैया मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना था। क्या गो अहेड। जी मुझे ये पूछना था कि मैं बीएससी एग्रीकल्चर में हूँ फिलहाल एमयू में। तो मेरे पास एक लेटर ऑफ सिलेक्शन आया था
उसमें ये लिख रखा था कि मुझे 5 स्टार्टअप अपने नाम से रजिस्टर करने हैं। उसके बाद मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा रिकॉग्निशन का। पर उस लेटर में उन्होंने ये नहीं लिखा था कि मुझे खुद से कोई स्टार्टअप करना है, और ना ही ऐसा कुछ उनका रूल है कि वो एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड होना चाहिए। तो मतलब मैं यही जानना चाह रही थी कि आप बता सकते हैं मुझे कि मतलब ये मैं कैसे कर सकती हूँ, या तो कोई इंसान जो स्टार्टअप कर रहा हो तो वो तो अपने अपने नाम से ही करेगा ना उसको रजिस्टर। दूसरे के स्टार्टअप को तो मैं कर भी नहीं सकती अपने नाम से रजिस्टर। और मुझे Sorry to interrupt, Ramsha. Well, this letter is for only campus ambassador program issued by various governmental institutions. For example, Indian Agricultural Research Institute followed a program known as Campus Ambassador under the name of Pushak Rishi. So these type of letter of appreciation is for campus ambassador. So you basically subscale their sub parties so that the startup culture in India is uh, very mesmerized and published at a very large scale. So you are the focal point of distribution of that particular institution. Yeah, Okay, if I believe Shaz has something to add up, please. आई बिलीव दैट इज योर आंसर। एंड सर ने काफी अच्छा आंसर किया है। एंड इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने प्रोफेसर्स, अपने इंक्यूबेशन जो आपकी यूनिवर्सिटीज में, आप उनके साथ टाइम एक्सपेंड करो। आप अपने आइडियाज को, आप जैसे अभी आपको ये लेटर और प्रॉब्लम है, अगर आप अपने प्रोफेसर्स को या यहाँ पे जो प्रोफेसर, आप उनसे टच में रहो। हो सकता है अभी आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया हो सकता है आपके 2 मंथ के बाद, आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ आइडिया है। तो always get in touch with your professors, your management people, like from your incubation at Aligarh Muslim University. So be in touch with them. Any more questions? Or shall I tell a little bit about ourselves? Like, Yes, please. Yes, please. yeah. So guys, basically what our startup do? So we are running a startup called Spans Cosmos. So what we are building is India's first space mobility startup. Okay. So what exactly space mobility startup do? We are building a spacecraft that provide a last mile ride to a satellite. Okay. So this is what the product we are working on. So if you look at any product, any spacecraft, now the most difficult part of any spacecraft is engine, and we already cracked that. And inshallah, next month, just after Eid, we have a plan to do the testing of our first engine. It's going to be a hot fire testing, and we have recently collaborated, signed an MOU with GD going to university. It's located in Delhi NCR, and we are going to set up our own testing stand over there and do this hot fire testing. And then in next 4 months, we have a plan to raise up. We already raised a pre-seed. We already raised a one grant from Ministry of Science and Technology, and then now we are going to raise around the pre-seed round in next 6 months, and we already touched with the deep tech investors, not just in India but also in abroad. So our next goal for this year is that we want to test our engine in ISRO, Sriharikota, and by the end of this year we want to fly this engine to space so that we can call our engine as a space grade engine, and then we can move to that cell part. So yeah, that's all about my startup. So this is what we are doing, and super excited. If any one of you guys interested to see the testing of our engine or wants to come to our lab, see the engine, see the testing facilities, most welcome all of you guys. And yeah, it's my pleasure to be here, sharing my ideas with you, sharing my journey with you about entrepreneurship, and hopefully you guys uh, get to know some of the insights about entrepreneurship as well. And I'm really excited to be here. And hopefully next time we can dive more deeper into more on the entrepreneurship on startup stuff. Yeah, thank you. Well said, Shaz. Thank you, Shaz, very much. And Shaz. can you guys please just turn off your mic? वहाँ रिया पे मांग रही है पैन दूध के लिए खड़ी हुई है शेरी में लाइन लग के। अरे दी कहाँ भी लेके गई मेरे ले गई Pardon, I'm not able to hear you. ले ढूंढ रही है रिया पे सब
Okay, okay. Now it's fine. Yeah. That's fine. Thank you so much, sir. It was really a wonderful session. We got to know that being an entrepreneur is neither a part-time or full-time job. It's a lifestyle. Now I request Fazil Imam, sir, the Joint Secretary of Aligarh Renaissance, to present our vote of thanks. Thank you. Uh, Good afternoon, everyone. Well, success is not an achievement; it's an hard work, and you must be prepared for it. Well, from ISRO background, I remember a quote from APJ Abdul Kalam that APJ Abdul Kalam rightly said about the success. ख्वाब वो नहीं जो आप सोते में देखते हैं, ख्वाब वो है जो आपको सोने में। Well, I thank you, Shaz, very much for your prestigious time. Even in the holy month of Ramadan starting, you just take out your time in your busy schedule and prepare a very good session, theory and discussions, and greatly answer all the questions of our participants. And in every choice of Aligarh Nisa, and on behalf of Aligarh Nisa, I would like to extend my heartfelt gratitude to each and every participant present over here, and we proudly present this event a tremendous success. First and foremost, we extend our heartfelt gratitude to the event coordinator, Ramya, and to all the participants present over here. Your contribution, whether big or small, have a big, significant impact. We look forward for your continuous support and participation in your future endeavors. Thank you very much once again. Sarve Bhavantu Sukhina, serving the community and empowering the nation. Thank you very much. Excuse me, Thank you, Shaz. Thank you very much. Yeah. excuse Thank me. you, guys. Lovely audience. Okay, Thank you. Shaz, if any query of our participants I with you, you can Yes, yes, please yes, answer this question if you yes, yeah, I have. have. Okay, okay. So, Thank you, thank you. how, Thank how you. can Thank you. I live launch? Hello? So, guys, and the session is done now. You can all leave the meeting. And wish you very blessed, holy Ramadan Mubarak. Stay blessed.